Okay, let us study about this ascariasis. What is meant by ascariasis? What is the mode of transmission of this ascariasis? What are the symptoms and life cycle of this ascariasis disease? ये सारी चीज़ों के बारे में हमें डिस्कस करना है. So, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं what is meant by ascariasis. Ascariasis क्या होता है इसके बारे में. Then, what are the different host and mode of transmission, life cycle, signs, symptoms, prevention and control, diagnosis and treatment. इनके बारे में डिस्कस करते हैं. So, ascariasis, it is the roundworm disease caused by Ascaris lumbricoides. This is the photograph of Ascaris lumbricoides in which the posterior end of male is curved one. The male is shorter than the female, as well as the body of the male is slender one, means less thinner than the female. Female body is very fatty one, okay, as compared to the male. The female body, it is more longer than the male body, as well as this female body, it does not show the such type of posterior curved end. In case of male, they have the pineal city or copulatory hairs present at the posterior ends of the male, while it is absent in female. This is the dimorphism. Sexual dimorphism, it is first of all seen in roundworm, that is in Ascaris lumbricoides, you can see here. Then Ascaris lumbricoid, it causes the disease known as ascariasis. This Ascaris lumbricoid, it is monogenetic dimorphic pseudocoelomate parasite. What is this? What is meant by monogenetic? Means this ascariasis disease, the host for this ascariasis disease is only human being, and this such type of host is known as definite host. Okay, the parasite that leave only one single host and completes its sexual life cycle in that host is known as the definite primary host. So human is the single host, definite host for this ascariasis. Therefore, we can call it as the monogenetic disease. Then dimorphic, we can differentiate male from female, okay, on the basis of some characters like the posterior curve end present in male while absent in female. The male body is longer and slender than female body. The copulatory hairs present at the posterior end of male while it is absent in female. So these are the dimorphic characters, sexual dimorphism. Then they are pseudocoelomate parasites because no doubt they are triploblastic, but they have their bisodom it does not get splits truly. इसी वजह से इसे हम pseudocoelomate कहते हैं. Then what are the different host and mode of transmission? The human being is the primary host as well as it is definite host because the life cycle only requires the human host only. इस वजह से इसे हम primary host कहेंगे, साथ ही साथ उसे हम क्या कहते हैं, definite host भी कहते हैं. Then how does the mode of transmission is taking place? Through the water and food material, the transmission of this ascaris lubricoid is takes place. Their eggs they lay in soil. They these female it near about 2 billions of eggs laid by the female at one time, and these eggs they are surrounded with the protein covering, and this protein covering protect this laying these eggs inside the soil. And when these eggs they are transferred to the food items or water reservoirs, whenever we eat or drink the such type of contaminated water and food material, these ascaris it enter into our body in the form of their eggs. When these eggs when these eggs comes inside the intestine, their protein covering get disintegrated or digested by the different enzymes secreted by the enzyme present in stomach and intestine, and their their body undergo different molting stages as well as developmental stages, and they develops into the larval form, that is rhabditiform larva. Okay, it is the infective stage. ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. Rhabditiform larva, it is the infective stage to the human being. So this is the mammaliated eggs. इसे mammaliated इसलिए कहा गया है क्योंकि मम्मी को जिस तरह से लिपापोती की जाती है डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स के द्वारा, ताकि वो कई हजारों सालों तक जैसे कि वैसी रह सके, ओके, कंजर्व रह सके. सो ऐसे ही प्रोटीन का स्ट्रक्चर इनके एग्स के बाहर होता है, इसीलिए इसे हम मैमिलेटेड एग्स कहते हैं. सो
ये जो एग्स होते हैं इनका ट्रांसमिशन कंटामिनेटेड फूड और वाटर के द्वारा होता है। लाइफ साइकिल, एस्कैरिस द डेफिनाइट होस्ट फॉर दिस एस्कैरिस लुब्रिकोइड इज द ह्यूमन ओनली, इसे हम डेफिनाइट होस्ट कहते हैं। So how does it is enter into the human body? As I told you earlier, these eggs, the eggs of this Ascaris lubricoid, that is the infective larva, rabdiiform larva, we can say, it is enter into the human body through the contaminated food and contaminated water. When it reached the intestine, जब ये intestine पर पहुंचता है, जब ये इंटेस्टाइन पर पहुंचता है, सो इंटेस्टाइन और स्टमक में जब ये पहुंचता है तब इसके जो एग्स है, इसके जो एग्स होते हैं उन पर जो प्रोटीन की जो वॉल होती है वो क्या हो जाती है, वो डाइजेस्ट हो जाती है। और ये जो लार्वा है वो वो जो होता है, जनरली इट इज माइक्रोस्कोपिक वन, वो लार्वा ब्लड के जरिए हार्ट और फिर सियर इंटेस्टाइन से लेकर वो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम के द्वारा हार्ट तक पहुंचता है, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम के द्वारा हार्ट तक पहुंचता है थ्रू द ब्लड मीडियम, एंड फ्रॉम दिस हार्ट इट कम्स टू द लंग्स थ्रू द pulmonary artery. Okay, then this pulmonary this inside the lungs, these radiatiform larval stage, it undergo to second and third molting stage. ओके, सो ये डेवलपमेंटल स्टेज है जो लंग्स में कंप्लीट होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है एम्स में, याद रखिए। और इस लंग से ये जो ब्लड है वो फिर से हार्ट से होते हुए ट्रकिया फेरिंग्स, ओके, ट्रकिया फेरिंग से होते हुए इसोफेगस में जाने के बाद उसे जब इंगल्फ किया जाता है, देन इट रीच टू द इंटेस्टाइन वंस अगेन। ये इंटेस्टाइन में रीच होने से पहुंचने के बाद, ओके, इट मैच्योर एट द इंटेस्टाइन रीजन with the help of their anterior papillae, lip-like papillae, they attaches the intestine of the human being, especially the children, and nourishes and take the nourishment from the intestine. जब ये इंटेस्टाइन में जब ये अडल्ट वर्म ये जब मेच्योर हो जाते हैं, देन दे परफॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिस फीमेल एट वन टाइम दे lays millions of eggs, okay, to nearly 2 millions of eggs lays by the at single time by the ascaris female, and these eggs they are released outside the body through the feces. When this fecal matter comes in contact with water reservoir, and when this such type of water, contaminated water used for agriculture purposes, these microscopic ends they attaches with the different types of fruit, vegetables, as well as the drinking water, and then again enter into the human body. This is the life cycle. In this life cycle, the definite host is the human being. तो इसे आपको याद रखना होगा, डेफिनाइट होस्ट ये ह्यूमन बीइंग होता है। ओके, देन नेक्स्ट वन, व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स of this ascariasis disease, especially in case of children? The gastrointestinal discomfort, okay, पेट में दर्द होने लगता है बच्चों के, ओके, महसूस होने मीन्स एक तरह से डिस्कम्फर्ट फील होता है, वोमिटिंग फीवर चढ़ जाता है, ओके। और फीकल मैटर से अगर ये बहुत ही इंटेंस हो जाता है तब फीकल मैटर के जरिए स्मॉल स्मॉल वर्म्स जो होते हैं स्कैरिस के वो भी फीकल मैटर के जरिए बाहर आते हैं। ये अगर माइक्रोफिलारियल लार्वा जो होता है स्कैरिस लुब्रिकोइड का, वो अगर वैसे ही अगर लंग्स में रह जाएगा तो इट कॉजेस इम्यूनाइटिस एंड पल्मोनरी डिसऑर्डर्स, ओके। साथ ही साथ ये जो छोटा जो चिल्ड्रन बच्चा होता है उसके इंटेस्टाइन में जब ये ग्रो होते हैं ट्रमेंडसली, तब ये इंटेस्टाइन से कंप्लीट न्यूट्रिशन क्या करते हैं, ले लेते हैं। और वो जो बच्चा होता है उसे न्यूट्रिशन की कमी की वजह से उसका वेट लॉस हो जाता है, उसे भूख भूख कम लगती है वगैरह वगैरह। और साथ ही साथ इस बच्चे में इओसिनोफिलिया भी हो जाता है, ओके, मीन्स इनमें ब्लड सेल्स की जो होती है कमी हो जाने लगती है। तो इस तरह के जो सिम्टम्स है, ये साइन और सिम्टम्स नजर आते हैं एस्कैरियासिस डिसीज के। सो व्हाट इज डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट? इसे अगर डायग्नोसिस करना है तो इसके डायग्नोसिस के लिए माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन करना होता है इनके एग्स का, इनके लार्वी का, तब जाकर पता चलता है एस्कैरिस, ओके, एस्कैरियासिस डिसीज है या नहीं है। देन व्हाट इज द ट्रीटमेंट? डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स, स्पेशली द एजोल डेरिवेटिव्स, ओके, जैसे कि पेप्रोसाइन, mebendazole, levendazole, and parentals. These are the antihelmintic drugs which is used in the treatment of ascariasis. So
ये जो ड्रग्स है इनके बारे में सीईटी में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसे याद रखना है आपको, ठीक है। तो इस तरह से एस्कैरियासिस डिसीज जो होता है इसे ट्रीट कर सकते हैं। देन व्हाट इज द प्रिवेंशन? ओके, प्रिवेंशन क्या हो सकता है एंड कंट्रोल किस तरह से कर सकते हैं? एक ही है, ओके, हाइजीन, ओके, सेल्फ हाइजीनेस। जब हम बहुत ही साफ सुथरे रहेंगे, बच्चों को भी साफ सुथरा रखेंगे, तब ये जो एग्स होते हैं अच्छी मीन्स खाना खाने से पहले हाथ धोना, साथ ही साथ फ्रूट्स वेजिटेबल्स इन्हें भी धोकर इस्तेमाल में लाना, ये सारी केयर अगर करते हैं तो फिर हम एस्केरियासिस से बच सकते हैं। देन सेकंड वन, फिलारियासिस। Filariasis disease is also known as elephantiasis. It is caused by Wuchereria bancrofti, the roundworm. It is also known as Wucheriasis. Okay, so ये जो filariasis disease है जिसे हम हत्ती रोग कहते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। What is this filariasis disease? What is its historical background, mode of transmission, and the number of hosts, the filarial cycle, then sign and symptoms, diagnosis, treatment, prevention and control कैसे किया जाता है उसे देखते हैं। Then what is filariasis? Filariasis, it is the roundworm disease, also known as elephantiasis. Okay, these in this disorder, the extremity parts like the legs, these extremity parts like the legs as well as the lymph nodes, they get swollen and their legs looks like the elephant. Therefore, it is known as elephantiasis. इसे हम filariasis कहते हैं. It is caused by the digest. What does it mean? Okay, इसका मतलब क्या होता है उसे हमें देखना होगा. Here, so it is digenetic dimorphic pseudocytomate histozoic parasite. इसका मतलब क्या होता है? Digenetic means the life cycle of this Wuchereria bancrofti. It is complete in two different rows: the Culex mosquito and human being. Then dimorphic means we can identify male and female filaria or Wuchereria bancrofti. It is pseudocoelomate roundworm. It is histozoic parasite means it is यस, ये हिस्टोजोइक पैरासाइट है। ये जो टिश्यूज होते हैं उस टिश्यूज में रहता है। ओके, हिस्टोजोइक पैरासाइट, इसी वजह से हम इसे कहते हैं, स्पेशली द लिम्फ नोड्स में रहने वाला ये पैरासाइट है। देन now this is the microfilarial larval stage, that is the infective stage of microfilarial larva. ये जो माइक्रोफिलारियल लार्वा होता है ये वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी जो है इसकी इन्फेक्टिव स्टेज है। ओके, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। So these are the digenetic, that is the male and female Wuchereria bancrofti. Male it is smaller than female. Then now this is the symptoms we can see here. The such type of elephant-like legs becomes this is the symptoms, or we can say the effect of filariasis. It is also known as the elephantiasis due to the swellings of the lymph nodes. ओके, तो इस वजह से इसे हम एलिफेंटाइसिस कहते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो पैट्रिक मैनसन, he was a person who had discovered that what is the vector for this filarial larva. He had identified that the Culex mosquito, it carry the filarial microfilarial larva and spread the filariasis disease in Africa generally. Then what is the host and mode of transmission? Human is the primary host while Culex mosquito is the secondary host. Their mode of transmission is takes place by biting of the culex that contain the microfilarial larva. इस तरह से क्या होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है। ये जो माइक्रोफिलारियल लार्वा जिस मॉस्किटो में होता है जिसे हम क्यूलेक्स मॉस्किटो कहते हैं, वो जब ह्यूमन को जब बाइट करती है उस समय वो उस माइक्रोफिलारियल लार्वा को इंजेक्ट कर देती है। ये माइक्रोफिलारियल लार्वा जो है ब्लड के फ्लो के साथ ये लिम्फेटिक सिस्टम तक पहुंचता है, लिम्फ नोड्स तक पहुंचता है, स्पेशली द ग्राइंड पार्ट। ये जो ग्राइंड पार्ट है कमर के नीचे वाला पार्ट, यहाँ पर लिम्फेटिक सिस्टम में ये पहुंच जाता है और पहुंचने के बाद ये जो माइक्रोफिलारियल लार्वा है, ओके, ये वहां पर ग्रो होने लगता है, बढ़ने लगता है।
ओके। और वहां पर वो जब एग्स वगैरह देता है तब उसके एग से और माइक्रोफिलारियल लार्वा जो होते हैं वो बॉडी में घूमते रहते हैं, लिम्फ में पहुंचते हैं, ब्लड में फ्लो होते रहते हैं। और ऐसी स्थिति में जब मॉस्किटो ऐसे इंसान को, इन्फेक्टेड पर्सन को जब क्या करता है, यस, ब्लड ब्लड सक करता है, तब माइक्रोफिलारियल लार्वा फिर से उस, क्या कहेंगे उसे, मॉस्किटो, किलस मॉस्किटो के बॉडी में एंटर हो जाता है। और ये जो क्यूलेक्स मॉस्किटो होती है वो इस माइक्रोफिलारियल लार्वे की मोल्टिंग स्टेज होती है इसमें। ओके, टू डिफरेंट मोल्टिंग स्टेज ऑकर्स हियर इन द gut of this mid gut of this culex mosquito L1 and L2. Then it migrates to the head and head of this mosquito, especially the salivary gland. Okay, then और वहां से ये माइक्रोफिलारियल लार्वा जो होता है वो ह्यूमन में फिर से न्यू ह्यूमन होस्ट में वो ब्लड सक करते समय उस माइक्रोफिलारियल लार्वल स्टेज को, दैट इज L3 स्टेज को, फिर से ह्यूमन के स्किन में, नॉर्मल ह्यूमन के स्किन में इंजेक्ट कर सकता है। तो इस तरह से ये जो है लाइफ साइकिल चलते रहती है। ये डाइजेनेटिक होता है, isn't it? यानी क्यूलेक्स मॉस्किटो इज द सेकेंडरी होस्ट जिसमें डेवलपमेंटल स्टेज होती है ह्यूमन मेल और फीमेल ह्यूमन बीइंग। इट इज द प्राइमरी होस्ट वेयर the sexual reproduction occurs between male and female microfilaria, or we can say the filaria, okay, male and female Wuchereria bancrofti. So इस तरह से ये मॉस्किटो और ह्यूमन में ये लाइफ साइकिल मोड ऑफ ट्रांसमिशन कंप्लीट होता है जो हमने आपको बताया। There are three different types of the filariasis. Okay, lymphatic filaria, subcutaneous filaria, and serous filaria. Lymphatic filaria, these are the swellings of the lymph nodes. It is caused by Wuchereria bancrofti, Bridgia malai, and Bridgia thymori. इनके द्वारा ये cause होता है। Then subcutaneous filaria, it is caused by the loa loa. Okay, तो इसे हम eye worm भी कहते हैं। Okay, then serous filaria, it is the filaria of the our, we can say the coelomic cavity का filaria, उसे हम serous filaria कहते हैं। Example, the genus is Monsonella, it causes serous filaria. तो ये different types के filariasis है। इनमें से हमने डिस्कस किया, यस, हमने क्या डिस्कस किया, लिम्फेटिक फिलारिया। अभी जो लिम्फेटिक फिलारिया होता है इसके साइंस और सिम्टम्स देखिए। इसमें एडेमा ऑफ द स्किन एंड अंडरलाइंग टिश्यूज होते हैं। ओके, ला लेग, आर्म, ब्रीस्ट, स्क्रोटम, डिफरेंट बॉडी पार्ट जो होते हैं उनकी स्वेलिंग्स या एडेमा, एडेमा मींस स्वेलिंग्स नजर आती है। जैसे कि ओके, ब्रीस्ट, देन हैंड, देन दैट इज द स्क्रोटम, देन लेग्स, इस तरह की स्वेलिंग नजर आती है। ओके, तो इसी वजह से इसे हम एलिफेंटेसिस कहते हैं। ओके, देन इसी वजह से इसे हम एलिफेंटेसिस कहना पड़ेगा। देन लिम्फ एडेमा, जो लिम्फ नोड्स होते हैं उनकी स्वेलिंग होती है, इसी वजह से एलिफेंटेसिस होता है। देन व्हाट इज द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट? ओके, सो डायग्नोसिस अगर करना है तो हमें जो ब्लड सैंपल होता है उसमें माइक्रोफिलारियल स्टेजेस, माइक्रोफिलारियल लार्वा को आइडेंटिफाई करना होता है। देन ट्रीटमेंट, डाइथिल कार्बेजमाइन सिट्रेट, ये जो डोज होता है इसके लेने का एक तरीका होता है। एक, ओके, सुबह शाम 3 वीक तक इस ट्रीटमेंट को लेनी होती है और हर बार फिर 6 मंथ तक 5 दिन लेने होते हैं। ओके, सो प्रिवेंशन कैसे करेंगे और कंट्रोल कैसे करेंगे? सेल्फ हाइजीन, इट इज द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल फॉर फिलारियासिस। मॉस्किटो को, अगर मॉस्किटो इट इज द वेक्टर फॉर फिलारियासिस, मॉस्किटो को रोक दिया जाए, मॉस्किटो को अगर हम पलने नहीं देंगे तो फिर ये जो डिसीज है वो कंट्रोल हो जाएगा। देन टाइफाइड, सर ये परमानेंटली स्टॉप नहीं होती? टाइफाइड टाइफाइड इट इज द बैक्टीरियल डिसऑर्डर, ये बैक्टीरिया के वजह से होने वाला डिसीज है। साल्मोनेला टाइफी, इट इज द causal organism of the typhoid. It is the, okay, acute intestinal disease, we can say, okay, caused by the bacteria साल्मोनेला टाइफी। ये जो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया होता है, इस साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया पर जो ओ एंटीजन होते हैं, जो उनके ये जो व्हाट इज दिस स्लाइम लेयर, उसे हम कैप्सूल जो कहते हैं, इस कैप्सूल पर रहने वाला जो ओ एंटीजन होता है, इस ओ एंटीजन की वजह से ये इन्फेक्शन होता है। ओके, सो इसे हम एक्यूट इन्फेक्शन ऑफ इंटेस्टाइन के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम टाइफाइड कहते हैं।
सो इसका होस्ट एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होता है? ओके, सो ये जो होता है, ह्यूमन इज द होस्ट फॉर दिस टाइफाइड बैक्टीरिया। ओके, ह्यूमन जो होता है इसका होस्ट होता है। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो कंटामिनेटेड वाटर और फूड मटेरियल जो होता है उसके जरिए होता है। ओके, एक केस स्टडी मैरी मेलॉन नाम की, ओके, जो मेड होती है जिसका प्रोफेशन कुकिंग था, तो वो कई जगहों पर, ओके, ये एक आपके बुक में दी गई एक केस स्टडी है। मैरी मेलन नाम की एक महिला है जो कई घरों में काम करती है, कुकिंग का काम करती है। उसने वो मैरी मेलन हिज शी वाज सफरिंग फ्रॉम टाइफाइड एंड शी स्प्रेड द टाइफाइड इन ऑल द homes, all the houses where she used to cook there. ओके, उसने सारे जहां जहां पर वो काम करती है उन सभी घरों में जहां पर वो कुकिंग करती है उन सभी घरों में टाइफाइड डिसीज पाया गया। और जब इस केस को स्टडी किया गया तब नजर में आया कि ये जो स्प्रेड हो रहा था वो मैरी मेलान नाम की जो थी है उसके वजह से ये स्प्रेड हो रहा था। इसी वजह से मैरी डिसीज भी कहा जाता है। ओके, सो ब्लडी मैरी जो मूवी है फिर इसके बाद ही सामने आई थी। ठीक है, सो होस्ट एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ओके, कंटामिनेशन, कंटामिनेटेड फूड मटेरियल या वाटर के जरिए ये होता है। ओके, सो टाइफाइड, व्हाट आर द डिफरेंट साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ दिस टाइफाइड? टाइफाइड को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है? ओके, डायग्नोसिस, विडाल टेस्ट इज यूज्ड फॉर द कंफर्मेशन ऑफ द टाइफाइड डिसीज। देन ये जो साइन होता है सीयर, जो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है लगभग 39 टू 40 डिग्री सेल्सियस। ओके, अगर फ़ारेनहाइट अगर कहना है तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर बॉडी का होता है। 39 टू 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ये है इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक या सिम्टम्स ऑफ टाइफाइड। ओके, टाइफाइड में ज़्यादा हाई फीवर नहीं होता। ओके, और मगर जो बॉडी टेम्परेचर है वो भी नॉर्मल नहीं रहता है। हमारा जनरल बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, मगर इस डिसीज में जो होता है हमारा बॉडी टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस, 39 टू 40 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो ये है साइन एंड सिम्टम्स ऑफ दिस टाइफाइड डिसीज। इसके अलावा स्टमक पेन, ओके, इंटेस्टिनल एंड स्टमक पेन, हेडेक, सर दर्द भी होता है। ओके, बहुत ही अनकॉन्शियस फील होने लगता है। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट अदर सिम्टम्स इसके पाए जाते हैं। ठीक है, और स्पेसिफिक सिम्टम्स और साइन जो है, ये फीवर होता है 39 टू 40 डिग्री सेल्सियस। ओके, और एब्डोमिनल पेन भी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन और सिम्टम्स है, ये आपको याद रखना है। ओके, देन अगला पॉइंट, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। विडाल टेस्ट इज यूज्ड टू डायग्नोज दिस टाइफाइड बैक्टीरिया, दैट इज साल्मोनेला टाइफी को आइडेंटिफाई अगर करना है तो विडाल डिसीज, सॉरी, विडाल टेस्ट जो होती है वो उसके जरिए डायग्नोसिस किया जाता है इस टाइफाइड का। देन व्हाट इज द ट्रीटमेंट? अब इस ट्रीटमेंट में सियर गॉल ब्लैडर को रिमूव किया जा सकता है। अगर टाइफाइड इंटेंस है तो ये जो गॉल ब्लैडर होता है इट इज द साइट वेयर द साल्मोनेला टाइफी इट बी, ये गॉल ब्लैडर रिजर्वेयर बन जाता है। हमारे बॉडी का जो गॉल ब्लैडर होता है यह इस साल्मोनेला टाइफी के लिए रिजर्वेयर बन सकता है। अगर टाइफाइड बहुत इंटेंस होता है, अगर टाइफाइड बार बार आ रहा है, इसका मतलब यह है कि उस ह्यूमन बींग्स के बॉडी के भीतर ये जो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है वो कहीं घर कर गया है। और कहाँ पर घर कर गया है? गॉल ब्लैडर में। तो उस समय गॉल ब्लैडर को रिमूव करना पड़ता है। ओके, उसे सर्जिकल रिमूव करना पड़ता है। तो कौन सी ट्रीटमेंट दी जाती है? एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट, दैट इज क्लोरोमाइसिटीन ट्रीटमेंट जो होती है टाइफाइड के लिए दी जाती है। साथ ही साथ डिफरेंट डिफरेंट जो वैक्सीन हैं यह भी मार्केट में अवेलेबल है। ओके, टाइफाइड 21A ओरल, ओके, और साथ के साथ टाइफिम 6 एंड टाइफ्रिक्स, ये इंजेक्टेबल वैक्सीन है। तो ये है टाइफाइड की ट्रीटमेंट के बारे में। अगला पॉइंट, निमोनिया। अब निमोनिया it is the one type of the common disease. It can be caused by bacteria, viruses, fungus, or different chemical factors as well. Okay, allergic factor भी निमोनिया कर सकते हैं या निमोनिया के सिम्टम्स दिखा सकते हैं। ठीक है, so inflammatory condition of the lungs or alveoli is known as the pneumonia. Then it is caused by different viruses like influenza virus, adenovirus, parainfluenza virus,
रेस्पिरेटरी सिंसाइटिल वायरस, साथ ही साथ डिप्लोकोकस निमोनी दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। देन फंगाई, देन निमोसिस्टिस जायरोवेसी, साथ ही साथ निमोसिस्टिस कैरिनिस, ये जो फंगस है ये भी निमोनिया कॉज कर सकते हैं। So these are the different biological factors that causes pneumonia. Then what are the different host and mode of transmission? अब ये जो निमोनिया है वो सिर्फ इंसान को होता है ऐसा नहीं, ओके। ये मुर्गे को साथ ही साथ डॉग, कैटल वगैरह इनको भी, अदर एनिमल्स को भी निमोनिया होता है और उनके लिए भी ये डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं। देन इसका ट्रांसमिशन जो होता है बाय एयर विद बाय यूजिंग द डिफरेंट डिफरेंट यूटेंसिल्स ऑफ ईच अदर, इसके जरिए भी होता है, ओके। सो साइन एंड सिम्टम्स, घर में अगर किसी को निमोनिया हो जाता है तो घर के बाकी के जो मेंबर होते हैं उन्हें भी 10-15 दिन के बाद किसी ना किसी को तो निमोनिया होता ही है, क्योंकि ये हवा के जरिए ये वायरस बैक्टीरिया जो होते हैं वो फैलते हैं, इजंट इट। ओके, जब स्नीजिंग वगैरह करते हैं तब उस स्नीजिंग की वजह से एयर में ड्रॉपलेट्स जो फैल जाते हैं, उस ड्रॉपलेट्स में ये बैक्टीरिया या वायरस जो अगर किसी के बॉडी में एंटर हो जाता है तो इट कॉजेस निमोनिया टू देम। देन व्हाट इज द साइन एंड सिम्टम्स? ओके, कंटिन्यूअस स्नीजिंग रहती है और इंटेंस हेडेक भी होता है किसी किसी को, साथ ही साथ टीयरिंग मींस वी कैन से द कंटिन्यूअस नोजिंग, ओके, वाटरिंग ऑफ माउथ, वाटरिंग ऑफ आईज, ये सारी चीजें निमोनिया में कॉमन सिम्टम्स होती है, ओके। देन नेक्स्ट वन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, बैक्टीरियल निमोनिया। अब डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस करने के लिए निमोनिया जो होता है ये वायरल है या नहीं, उसके वजह से हमें टेस्ट करनी पड़ती है, एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट करनी होती है, ठीक है। देन ट्रीटमेंट, बैक्टीरियल निमोनिया अगर होता है तो एंटीबायोटिक्स के जरिए उसे, जैसे कि बेंजाइल पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन, क्लोराम्फेनिकॉल और भी डिफरेंट डिफरेंट एंटीबायोटिक्स है जिसका इस्तेमाल निमोनिया में किया जाता है, ओके। सो ये है निमोनिया के बारे में। अगला पॉइंट, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, ओके। सेल्फ हाइजीन रहना है, मास्क पहनना है, ओके, कंटिन्यूअसली जो भी चीजें बाहर, जब बाहर से हम घर के भीतर आते हैं तो हाथ पैर वगैरह सारी चीजें धोनी है वगैरह सारी चीजें, ठीक है। तो इसे, इस वजह से सेल्फ हाइजीन और खुद को अगर साफ रखा जाए तो हम खुद तो साफ रहेंगे और दूसरों को भी हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। सो निमोनिया जैसे कोरोना आप सभी को पता है, ठीक है। तो कोरोना काल में सभी लोगों ने सेल्फ हाइजीन सीख लिया, ओके। तो डिफरेंट डिफरेंट वैक्सीन जो होते हैं वो भी मार्केट में अवेलेबल है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, इनके वैक्सीन भी अब अवेलेबल है। साथ ही साथ निमोकोकस नाम का जो बैक्टीरिया है उस निमोकोकस वैक्सीन भी अभी जो स्मॉल चिल्ड्रन होते हैं उन्हें इम्यूनाइजेशन निमोकोकस निमोनी, ओके। तो इस निमोकोकस का वैक्सीन आजकल छोटे बच्चों को दिया जा रहा है, ओके, इजंट इट। सो ये है निमोनिया के बारे में। नेक्स्ट वन, एड्स। एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, इसे हम कहते हैं एड्स। तो ये जो एड्स होता है इसे हम सिंड्रोम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो एड्स होता है इसका एक टिपिकल सिम्टम्स है, वो यह है कि डिसीज रेजिस्टेंस पावर जो होती है, इम्यूनो डिफिशियंसी, इम्यून पावर जो होती है वो डिफिशियंट हो जाती है, क्योंकि जो बॉडी की जो टी लिम्फोसाइट सेल होते हैं उनका डिस्ट्रक्शन कंटिन्यूअस होता चला जाता है। इस वजह से इसे हम इम्यूनो डिफिशियंसी कहते हैं और इसमें बॉडी की फाइटिंग पावर कम होती है, इस वजह से इसे सिंड्रोम कहेंगे। सिंड्रोम का मतलब क्या होता है? Syndrome means a such type of disorder or disease whose symptoms cannot be seen in any other disease or disorder, उसे हम सिंड्रोम कहते हैं। तो एड्स के जो सिम्टम्स है वो सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम जो कहीं नहीं नजर आता वो ये है कि टी लिम्फोसाइट सेल्स बहुत कम हो जाते हैं, जिस वजह से हमारी जो फाइटिंग पावर्स है वो भी कम हो जाती है, यानी इम्यूनो डिफिशियंसी इसी को कहते हैं। देन व्हेन एंड वेयर रिपोर्टेड, कहाँ पर? यस, first of all in 1981 in the USA it was first of all reported from USA, okay, by this डिसीज कंट्रोल सेंटर एटलांटा, ओके, यहाँ पर डिस्कवर किया गया था, रिपोर्ट किया गया था। देन इसके अलावा हमारे इंडिया में जो सबसे पहले रिपोर्ट किया गया 1986 में, और उसके बाद यह फैलता चला गया पूरी दुनिया में,
ओके, तो इसे इसे एपिडेमिक कहा नहीं जा सकता, मगर ये एपिडेमिक्स है ऐसा मान सकते हैं। देन नेम, इसको डिफरेंट डिफरेंट नेम्स दिए गए थे जब ये पहले डिस्कवर किया गया था। ओके, सो ये जो एड्स है, ये जब सबसे पहले डिस्कवर किया गया था उसे डिफरेंट डिफरेंट नाम दिए गए। एड्स नाम बाद में दिया गया। ओके, सो कौन से नाम दिए गए? हियर HCLV थर्ड, ह्यूमन सेल ल्यूकेमिया वायरस थर्ड, देन HTLV दैट इज द ह्यूमन टी लिम्फोट्रॉपिक वायरस थर्ड, साथ ही साथ लिम्फोएडेनोपैथी एसोसिएटेड वायरस, मोस्ट कॉमन HIV 1 एज वेल एज दूसरा HIV सेकेंड। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट नेम्स इसे दिए गए। ओके, देन विच वायरस कॉजेस एड्स? HIV वायरस कॉजेस एड्स, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, उसका नाम ही है HIV, HIV फॉर ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। तो ये कॉज करता है एड्स को। अब इन सभी के अलावा सिर्फ एक ही वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं, HIV, ओके, यानी ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। ओके, so it causes the AIDS. Then it is the retrovirus. ये किस तरह का वायरस है? इसमें दो RNA एज अ जेनेटिक मटेरियल के तौर पर प्रेजेंट रहते हैं इस वायरस में, इसीलिए इसे हम रेट्रोवायरस कहते हैं। किस तरह से ट्रांसमिशन होता है? ओके, इसकी वजह तो 3 डिफरेंट ट्रांसमिशन के जरिए हैं। ओके, हम 4 देखते हैं। सो 3 इंपॉर्टेंट आर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट, इंटरकोर्स की वजह से ये अगर दो पार्टनर में से किसी एक को अगर होता है तो वो फैलता है। ओके, अगर किसी फीमेल को है तो उसके जरिए मेल को ये फैल सकता है बाय अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट। देन वर्टिकल ट्रांसमिशन, यानी माता से उसके बच्चे को यानी गर्भ को यह हो सकता है, इसे हम वर्टिकल ट्रांसमिशन कहते हैं। ब्लड के जरिए भी इसका ट्रांसमिशन हो सकता है। जो ड्रगिस्ट हो, जो हम जैसे कि जो ड्रग के एडिक्ट होते हैं, ड्रग एडिक्शन जिसे होती है, ऐसे जो लोग होते हैं वो एक ही सिरिंज से एक दूसरे को क्या करते हैं? यस, ड्रग जो होते हैं वो इंजेक्ट करते हैं। इस वजह से इस तरह के अगर ड्रग्स एक दूसरे को अगर शेयर करने लगेंगे, इंजेक्ट करने के लिए एक ही सिरिंज का इस्तेमाल करेंगे, तो एक दूसरे में यह स्प्रेड हो सकता है। ये ब्लड के जरिए ट्रांसफ्यूज हो रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है। ओके, दूसरा, अगर किसी डोनर को अगर किसी डोनर को अगर अगर किसी डोनर को अगर HIV मीन्स एड्स है, तो उसका अगर ब्लड अगर नॉर्मल पर्सन को अगर क्या किया गया, ट्रांसफ्यूज किया गया, तो उस रिसीवर को भी HIV एड्स हो जाएगा। ओके, तो ये बेसिक ट्रांसमिशन है एड्स के। देन व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस एड्स? नाउ ये है एड्स का स्ट्रक्चर। अगर आप यहाँ देखते हैं तो दिस टू जेनेटिक RNA, ओके, टू जेनेटिक RNA सिंगल स्ट्रैंडेड RNA genome, it is the genome of retrovirus. Okay, RNA is their genetic material, 2 RNA होते हैं, इस वजह से इसे हम रेट्रोवायरस कह सकते हैं। और इस RNA में साथ ही साथ इनके साथ में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है जो इस RNA से DNA बनाता है होस्ट बॉडी में, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ये जो जेनेटिक मटेरियल है, दे आर सराउंडेड विद द प्रोटीन कोट दैट इज कैप्सिड, उसे हम P24 कहते हैं। ये जो प्रोटीन कोट है, ये जो कैप्सीड है, ये जो प्रोटीन कोट है P24, ये इस वायरस का कैप्सीड है, ये इस वायरस का प्रोटीन कोट है। इसके अलावा और एक वायरस का प्रोटीन कोट होता है, उसे हम P17 नाम से जानते हैं। ओके, और इनके भीतर प्रोटीएज, पेप्टिडेज और होस्ट प्रोटीन्स होते हैं। ओके, सो ये जो है, ये 2 प्रोटीन के कोट से कवर्ड है, और इस प्रोटीन कोट के बाहर लिपिड बायलेयर मेम्ब्रेन आपको नजर आ रही है। ओके, स्लाइटली येलोइश कलर में। ओके, लिपिड बायलेयर मेम्ब्रेन। अब ये जो लिपिड बायलेयर मेम्ब्रेन होती है, ये होस्ट ओरिजिन होती है। इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, ये जो लिपिड बायलेयर मेम्ब्रेन आपको नजर आ रही है, ये वाली, ओके, तो ये जो होती है ये होस्ट ओरिजिन होती है, यानी ह्यूमन ओरिजिन होती है। यह कैसे? ओके, जब ये होस्ट के बॉडी से सेल के बाहर निकलता है, तब ये इस होस्ट के लिपिड लेयर के कवर्ड होकर ही उस होस्ट के बॉडी को छोड़ता है, यानी सेल को छोड़ता है। ओके, और इस वजह से इसके बॉडी पर, इसके लिपिड बाय लेयर मेम्ब्रेन पर
ये जो GP41, GP मीन्स ग्लाइकोप्रोटीन 120, डॉकिंग ग्लाइकोप्रोटीन, MSC प्रोटीन, ये जो नजर आ रहे हैं ये सारे ह्यूमन प्रोटीन है। ओके, ह्यूमन होस्ट के ये प्रोटीन है, जिस वजह से हम इस एड्स को, इस HIV एड्स को अगेंस्ट में वैक्सीन बनाने में क्यों वक्त लग रहा है, क्योंकि इसके बाहर की ये जो लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन होती है वो ह्यूमन ओरिजिन की है, इसी वजह से इतना समय लग रहा है। ठीक है, तो आगे डिस्कस करते हैं। साथ ही साथ दूसरा रीजन यह है कि इसका जो RNA जीनोम होता है इसमें कंटिन्यूअस म्यूटेशन होता चला जाता है। एक होस्ट से दूसरी होस्ट में जब ये वायरस जाता है तब इसके RNA में म्यूटेशन नजर आता है, और इसी के वजह से ये एक फिक्स तरह का फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन नहीं देता। ओके, सो इसी वजह से इसकी वैक्सीन जो होती है वह बनना मुमकिन नहीं है। देन अगला पॉइंट, तो इस तरह का ये होता है स्ट्रक्चर ऑफ द एड्स कॉजिंग HIV वायरस। देन व्हाट इज दिस पैथोजेनिसिटी, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, किस तरह से ये फैलता है। व्हेन दिस रेट्रोवायरस it is trans when it is enter into the animal cell or human cell, there the virus, what is this viral genetic material, that is RNA, it undergo reverse transcriptase process. What is meant by reverse transcriptase process? Reverse transcription, it is the process in which from the RNA DNA प्रोड्यूस, ओके, जो RNA होता है, RNA से DNA प्रोड्यूस होने की जो प्रोसेस होती है उसे हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और इसके भीतर जो रहने वाला जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है जो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, वो इस RNA जीनोम से होस्ट के बॉडी में क्या बनाता है, DNA बनाता है, और इसी को हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और ये जो DNA है इट बिकम्स डबल स्ट्रैंडेड, ये जो DNA होता है ये डबल स्ट्रैंडेड होकर, ये डबल स्ट्रैंडेड DNA ये ये क्या करता है, ये होस्ट के जो DNA होते हैं उस होस्ट के DNA के साथ लाइगेट हो जाता है। और होस्ट के DNA के साथ जब ये लाइगेट होता है तब ये ढेर सारे अपने मैसेंजर RNA बनाकर, ये मैसेंजर RNA अपने जो इसके जो कैप्सिड प्रोटीन्स होते हैं उस जीन को एक्सप्रेस कर कर, ओके, उसके कैप्सिड प्रोटीन्स बनाता है। कैप्सिड प्रोटीन मीन्स ये जो कैप्सिड प्रोटीन आपको नजर आ रहे हैं, ओके, कैप्सिड P24, P17, इस तरह के प्रोटीन जो है ये बनाता है। और फिर अपने इस RNA मॉलिक्यूल के अराउंड में ये जो P24 प्रोटीन वगैरह है, वो कैप्सिड प्रोटीन जो है वो इसके अराउंड में क्या होते हैं, ये सराउंड कर लेते हैं इस जीनोम को और अपनी क्वांटिटी बढ़ाने लगते हैं। तो ये है मैक्रोफाज। ये जो मैक्रोफाज जो सेल होती है, इट इज द फैक्ट्री फॉर द सिंथेसिस ऑफ द HIV वायरस। इस HIV वायरस के ये जो न्यू वायरसेस की जो फैक्ट्री होती है वो मैक्रोफेज होते हैं। जब ये रेट्रोवायरस मैक्रोफेज को इन्फेक्ट करते हैं तो मैक्रोफाज जो होता है, मैक्रोफाज, ओके, इट बिकम्स द फैक्ट्री फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू वायरसेस। ओके, जब ये न्यू वायरस जब इस होस्ट के सेल को जब ये छोड़ते हैं उस समय ये इस होस्ट की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को लेकर निकलते हैं। जैसे कि आपने देखा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जब ये लेकर निकलते हैं तो इसकी वजह से ही इस वायरस के बाहर जो लिपोपॉलीसैकेराइड, सॉरी, जो लिपिड बाइलेयर की जो मेम्ब्रेन है, साथ ही साथ MSC प्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन 41, ग्लाइकोप्रोटीन 120, ये सारे ह्यूमन ओरिजिन होते हैं। वो क्यों होते हैं, क्योंकि जब ये वायरस, न्यू वायरस मॉलिक्यूल जब ये माइक्रोफेज से बाहर निकलता है, इस मैक्रोफेज को जब ये छोड़ता है, तब उस समय ये वायरस इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को लेकर इस वायरस अपना यह जो मैक्रोफाज है अपना घर जो है वो छोड़ देता है। ओके, सो इस तरह से मैक्रोफाज जो है ये अब एक तरह की फैक्ट्री बन जाता है। क्या बन जाता है, फैक्ट्री, जो कंटिन्यूअसली यह आरएनए कंटेनिंग वायरस को प्रोड्यूस करने लगता है। और इस तरह से अब जब ये वायरस ये इस मैक्रोफेज से बाहर निकलते हैं तब ये दूसरे डिफरेंट डिफरेंट अदर सेल्स को इन्फेक्शन करना शुरू कर देते हैं और अपनी गिनती बढ़ाते रहते हैं। ओके, सो यह था इसके पैथोजेनिसिटी और साथ ही साथ इसका ट्रांसमिशन। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो नेचुरल किलर सेल्स होते हैं, ये वायरस मॉलिक्यूल जो है इस नेचुरल किलर सेल से जो होता है वो वो एक तरह के प्रोटीन को बाइंड होकर निकलता है। ओके, ये जो प्रोटीन है आपको नजर आ रहा होगा, दैट इज दिस
सोल्यूबल सिंगलेट 7, ये प्रोटीन जो है फिर ये T4 सेल टी लिम्फोसाइट्स को बाइंड होता है। टी लिम्फोसाइट जो होते हैं इसे वो डिस्ट्रक्ट कर देते हैं। ओके, ये जो मैक्रोफाज है, ये जो मैक्रोफाज है, जब ये मैक्रोफाज से जुड़ जाता है वायरस, तब इसके भीतर जाकर ये ट्रेमेंडस आरएनए कंटेनिंग रेट्रो वायरस बनाना शुरू करता है। और ये जो रेट्रो वायरस बनते हैं तब ये डिफरेंट डिफरेंट सेल्स को इन्फेक्शन करना स्टार्ट करते हैं। मैक्रोफाज जो है या मोनोसाइट जिसे हम कहते हैं, मोनोसाइट का ही मैक्रोफाज बनता है, आप सभी को पता है। और ये मैक्रोफाज जो है वो एक तरह की फैक्ट्री बन जाते हैं इस वायरस को बनने की। ओके, तो इस तरह से ये वायरस जो होते हैं वो बढ़ने लगते हैं। और फिर इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो नजर आते हैं स्लोली स्लोली। ये जो वायरस पार्टिकल है ये सीटी व्हाट इज दिस टी लिम्फोसाइट पर जो CD4 रिसेप्टर्स होता है, ओके, इजंट इट, CD4 जो रिसेप्टर्स होता है, इस CD4 रिसेप्टर्स पर ये जब बाइंड होते हैं तब ये आसानी से इस टी लिम्फोसाइट सेल को डिस्ट्रक्ट करना शुरू कर देते हैं। और जैसे जैसे हमारे बॉडी में टी लिम्फोसाइट सेल डिस्ट्रक्ट होना शुरू हो जाते हैं, वैसे वैसे उस इंसान की जो इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी पावर है, ओके, वो धीरे धीरे कम होने लगती है। और फिर जो जो अपोनिस्टिक पैरासाइटिक है, मीन्स जो ताक में ही रहते हैं कि कब कब ह्यूमन बींग को इन्फेक्शन किया जाए। ओके, जैसे कि माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी कॉजिंग बैक्टीरिया, डिफरेंट डिफरेंट वायरसेस, फंगस और टोक्सोप्लाज्मा, ये ब्लड पॉइजनिंग करता है, टोक्सोप्लाज्मा। इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट जो वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, टोक्सोप्लाज्मा जैसे जो डिफरेंट डिफरेंट पैरासाइट है, इसे हम अपॉर्चुनिस्टिक पैरासाइट कहते हैं। यानी अब इस ह्यूमन को जिसने एचआईवी ने इन्फेक्शन किया है, उस ह्यूमन की जो बॉडी की जो रेजिस्टेंस पावर है, फाइटिंग पावर है, वो कम हो चुकी है। जिस वजह से ये जो पैरासाइट है वो आसानी से मिस इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हैं। इसे हम कहते हैं अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन। दे कॉजेस दे इन्फेक्ट द सच टाइप ऑफ इम्यूनोडिफिशियंट इन्फेक्टेड पर्सन। ओके, साथ ही साथ निमोनिया भी, निमोनिया, डिप्लोकोकस निमोनी, कई सारे जो बैक्टीरिया वायरस है उस इंसान को फिर इन्फेक्शन करने लगते हैं। और वो जो इंसान है वो इस एड्स की वजह से नहीं बल्कि ये जो अपॉर्चुनिस्टिक जो पैथोजन है इनके इनके डिसीज की वजह से वो मर जाता है। ओके, तो बच्चों, एड्स एड्स जो होता है इसके लिए कोई क्यूर नहीं है, इसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ओके, अपने पार्टनर के साथ ईमानदारी से रहे, साथ ही साथ किसी भी तरह के व्यक्ति से, मीन्स जो ड्रग जो होते हैं, मीन्स जिन्हें ड्रग एडिक्शन होते हैं, ऐसे व्यक्ति से दूर रहे। ओके, साथ ही साथ ऐसे किसी भी तरह के व्यक्ति का मीन्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से पहले उस ब्लड के डोनर वाला, ब्लड का जो डोनर है, ब्लड देने वाला जो डोनर है, या फिर ब्लड की जो बैंक होती है वो HIV एड निगेटिव होनी चाहिए। ओके, इजंट इट, यानी HIV निगेटिव होनी चाहिए, चाहे वो किसी का भी ब्लड हो। ठीक है, मीन्स ब्लड ग्रुप तो हम टेस्ट करते ही है किसी भी तरह से। ओके, तो और हमें और एक परंपरा शुरू करनी चाहिए, जैसे कि अगर किसी का ब्याह होता है, अगर अरेंज मैरिज है, ओके, या फिर लव मैरिज भी है तो नो प्रॉब्लम, सबसे पहले ऐसे जो डेंजरस डिसीजेस है, ओके, जेनेटिक डिसऑर्डर है, जैसे डिफरेंट डिफरेंट मीन्स हीमोफीलिया वगैरह वगैरह, ठीक है, एडेनोसिन डियामिनेज वगैरह वगैरह, तो ऐसे जो डिफरेंट डिफरेंट जेनेटिक डिसऑर्डर है और साथ ही साथ एड्स जैसी भयानक बीमारियां हैं, इन सभी की टेस्ट अगर हो जाती है, ओके, दोनों मीन्स जो ह्यूमन मीन्स मेल और फीमेल जो है उनकी शादी से पहले इनकी अगर टेस्ट करा दी जाए, ओके, अभी तो कोरोना टेस्ट भी करना जरूरी हो गया है शादी से पहले मेल और फीमेल की। ओके, तो ऐसे ऐसे डेंजरस बीमारियां जिसके आगे वाली पीढ़ी को खतरा हो सकता है, तो ऐसे टेस्ट जो है उस मेल और फीमेल उन दोनों से करवाना कंपलसरी करना होगा। ओके, तभी जाकर उन दोनों का अगर ब्याह करते हैं तो उनका परिवार सुखी रहेगा। वरना परिवार मीन्स शादी के बाद अगर पता चलता है कि इसको ऐसे है वैसे है, तो शादी के बाद कुछ नहीं कर सकते। तो जो भी करना है शादी से पहले टेस्ट करवा लीजिए, ताकि आप भी सुरक्षित रहें और आपका परिवार भी। ठीक है, तो बच्चों, यहाँ पर जो है हमने एड्स आपको बताया। ठीक है, समय अभी जो है बहुत ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं, ये जो कैंसर टॉपिक है यह बचता है। ठीक है, सो
ठीक है, कैंसर को भी हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं। ओके, 10 मिनट में हम खत्म करेंगे। तो कैंसर क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय कैंसर? ओके, कैंसर क्या होता है? द पैथोलॉजिकल अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ द बॉडी सेल दैट कॉजेस ट्यूमर, इट इज नोन एज द कैंसर। कैंसर जो होता है, ओके, कैंसर क्या होता है? इट इज द अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ द सेल, सेल की अनकंट्रोल ग्रोथ हो जाना। ओके, द रेगुलेशन ऑफ सेल डिवीजन is not inhibited. The regulation over the cell division is lost by the cell. इस कंडीशन को हम कैंसर कहते हैं। ठीक है, so the study of the cancer in that field, which in which field we can study this cancer? Oncology. Oncology is the field where the study of this cancer can be performed. Then oncologist, the doctor of this cancer, we can call it as the oncologist. Then नियर अबाउट 2015 में एक सर्वे के दरमियान यह पाया गया कि जो ऑल वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उसमें से 8.8 मिलियन जो लोग हैं वो कैंसर से जिनकी डेथ हुई थी। आज यह आंकड़ा बहुत ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि हर 5-10 इंसान में से किसी एक का जी जो मीन्स जनरली मौत है वो कैंसर की वजह से ही हो रही है। So what are the different important causes or the percentage of the cancer death? Tobacco 22%, obesity 10%, poor diet, lack of physical activities and excessive drinking of alcohol. ये कुछ important different reasons है जिनकी वजह से कैंसर फैलने में बहुत ज्यादा मीन्स वक्त नहीं लग रहा है। Then exposure to ionizing radiation, environmental pollutants, carcinogenic chemicals, ये सारी चीजें जो है ये केमिकल एजेंट हैं, साथ ही साथ बायोलॉजिकल एजेंट भी होते हैं जैसे कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, देन ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, इप्स्टेन बार वायरस एंड ह्यूमन इम्यूनो वायरसेस। सो ये बायोलॉजिकल फैक्टर्स है जो 15% ऑफ कैंसर इज ड्यू टू सच टाइप ऑफ डिफरेंट डिफरेंट बायोलॉजिकल फैक्टर्स। सो इस तरह से जो कैंसर होता है ये फिजिकल यानी आयोनाइजिंग रेडिएशन, केमिकल यानी डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स, कार्सिनोजेनिक केमिकल्स लाइक इथिडियम ब्रोमाइड, ओके, लाइक अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज वगैरह, आयोनाइजिंग रेडिएशन और बायोलॉजिकल फैक्टर जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट वायरसेस और बैक्टीरिया, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ओके, ये अल्सर्स होता है, ओके, ये अल्सर कॉजिंग बैक्टीरिया है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ठीक है, सो इन सभी की वजह से कैंसर होता है। देन व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैंसर, या फिर कैंसर कैसे बढ़ता है, कैसे पैदा होता है? सी जब किसी बॉडी के पार्ट में किसी सेल में अगर जो सेल डिवीजन होता है उस पर अगर कंट्रोल नहीं होता तो उस जगह पर वो सेल कंटिन्यूअसली जो होती है वो डिवाइड होते रहती है और उसे हम बेनिंग ट्यूमर कहते हैं। बेनिंग ट्यूमर जो बॉडी में कहीं नहीं फैलता, मगर जब ये बेनिंग ट्यूमर जो होता है ये अनकंट्रोल ग्रोथ होकर इसके जो सेल्स होते हैं वो अगर ब्लड के जरिए किसी और बॉडी के लोकेशन पर पहुंचते हैं तो हम इसे मेटास्टेसिस कहते हैं। और ये जो स्टेज होती है मेटास्टेसिस, ये इस कैंसरस सेल को बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में फैलाता है और डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में फिर कैंसर स्टार्ट हो जाता है। इस स्टेज को हम थर्ड स्टेज मीन्स मेटास्टेसिस स्टेज कहते हैं जिसे रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। देन व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉर्मल सेल एंड कैंसरस सेल? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। द नॉर्मल सेल्स दे आर when the stem cells we can say, when the cells they are growing in nutrient medium, the growth and development of the cell is taking place in a single line, okay, मोनोलेयर कल्चर होता है नॉर्मल सेल का। क्योंकि क्यों क्योंकि ये जो सेल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में इस तरह से होते हैं कि ये सिंगल लेयर फॉर्म करते हैं, मल्टीपल लेयर फॉर्म नहीं करते, ओके, और इसे हम कांटेक्ट इनहिबिशन कहते हैं। इसके ऊपर अगर कोई सेल अगर ग्रोथ होना चाहती है तो वो उसे इनहिबिट कर देते हैं, ओके, सो कांटेक्ट इनहिबिशन इसे कहते हैं। कांटेक्ट इनहिबिशन मतलब क्या होता है? अगर एक सेल दूसरे सेल के कांटेक्ट में होती है तो वो आपस में एक दूसरे के सेल डिवीजन को कंट्रोल करते हैं, इसे हम कांटेक्ट इनहिबिशन कहते हैं। मगर जो कैंसरस सेल्स होती है उनमें कांटेक्ट इनहिबिशन नहीं होता, ओके, और वो कंटिन्यूअसली डिवाइड होती है और इस तरह से ये हिलॉक या फिर लंप फॉर्म करते हैं, मल्टीलेयर फॉर्म करते हैं, इसे हम कहते हैं कैंसरस सेल्स।
व्हेन द नॉर्मल सेल और द पेशेंट के, अगर किसी पेशेंट का अगर कोई टेस्ट करना है कि ये कैंसर है या नहीं, तब उसके सेल का स्वैप लिया जाता है। सेल का सैंपल लेकर उसे न्यूट्रिएंट बेडी में ग्रो किया जाता है। अगर वो ग्रोथ अगर मोनोलेयर होती है तो दैट इज कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, तो वो नॉर्मल सेल है। वरना अगर वो मल्टीलेयर फॉर्म कर रहे हैं तो दैट इज द इंडिकेशन ऑफ द कैंसरस सेल। ओके, सो इस तरह से इनके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। इसके अलावा जो नॉर्मल सेल होती है, ओके, वो नॉर्मल साइज की होती है, मगर जो कैंसरस सेल होती है वो लार्ज वेरिएबल साइज और शेप की होती है। साथ ही साथ जो नॉर्मल सेल का जो डिवीजन होता है उसका एक फिक्स टाइम होता है। वी नो दैट 24 आवर्स में न्यूट्रन मीडियम में नॉर्मल सेल्स जो होते हैं सेल डिवाइड होते हैं, मगर वही कैंसरस सेल जो होते हैं उनका डिवीजन स्पीड बहुत फास्ट होता है। ओके, और डिसऑर्गेनाइजली रैंडमली इनका डिवीजन होता चला जाता है। ओके, तो द शेप और साइज यह नॉर्मल होते हैं किसी भी नॉर्मल सेल के, मगर कैंसरस सेल का ये सारी चीजें चेंज हो जाती है। सो यह भी कैरेक्टरिस्टिक याद रखना है। इसके अलावा व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस कैंसरस सेल? कैंसरस सेल दे आर इमोर्टल वन, हमें इसे रोक नहीं सकते, ये कंटिन्यूअसली डिवाइड होते चले जाते हैं। इसे रोकना बहुत ही मुश्किल होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि इनके डीएनए में एरर आ जाता है। डीएनए में एरर आने की वजह से सेल साइकिल, सेल डिवीजन पर कंट्रोल नहीं होता। ओके, साथ ही साथ सभी सेल की जो आयु होती है वो फिक्स होती है। ओके, और उसकी आयु होने के बाद, लाइफ स्पैन समाप्त होने के बाद अपोप्टोसिस होता है, यानी प्रोग्राम सेल डेथ होता है। मगर इस तरह की जो सेल्स कैंसरस सेल होती है उसमें प्रोग्राम सेल डेथ नहीं होता। देन ये जो सेल होते हैं इन्हें जो न्यूट्रिशन मिलता है, ये एनर्जी के लिए ग्लाइकोलाइसिस इस प्रोसेस पर डिपेंडेंट रहते हैं। ओके, तो यह सारे जो होते हैं ये डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज है या कैरेक्टरिस्टिक है कैंसरस सेल के। देन डेवलपमेंट ऑफ कैंसर, जैसे कि हमने आपको बताया। सो जो नॉर्मल जीन होता है, जो नॉर्मल एक्टिविटी करता है सेल डिवीजन की, उसे हम प्रोटो ऑन्कोजीन कहते हैं। यहाँ पर टी होना चाहिए, ठीक है, प्रोटो ऑन्कोजीन कहते हैं। जब ये प्रोटो ऑन्कोजीन जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर, जैसे फिजिकल फैक्टर, केमिकल फैक्टर या फिर बायोलॉजिकल फैक्टर, वायरसेस और बैक्टीरिया वगैरह, इनकी वजह से ये जो प्रोटो ऑन्कोजीन होता है इसमें म्यूटेशन कर दिया जाता है, जिसकी वजह से इट इज कन्वर्टेड इनटू ऑन्कोजीन। एंड दिस ऑन्कोजीन इट this oncogene, it inhibit the different regulator proteins that control over the cell division. वो सेल डिवीजन करने वाले जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स है उनके उनके वर्किंग को ये इनहिबिट कर देता है। ऑन्कोजीन जो होता है वो फिर अनकंट्रोल सेल डिवीजन करना शुरू करता है। ओके, सो ये डिफरेंट थ्री डिफरेंट फैक्टर्स है और ये डिफरेंट डिफरेंट जीन है। फॉर एग्जांपल रास जीन। सो व्हाट इज दिस रास? रास और रैट सार्कोमा कैंसरस जीन, जिसमें उसकी स्टडी की गई थी। HER2 जीन, ह्यूमन एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर 2 जीन। देन मैक, माइसैटो माइसैटो जीन, ओके, जो एक तरह का कैंसरस जीन है जो ह्यूमन मेविंग में डिस्कवर किया गया था। साइक्लिन डी, इट इज द प्रोटीन दैट परफॉर्म द रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल एट G1S एंड G2M, इन दोनों के बीच में ये जो साइक्लिन डी जो होते हैं ये रेगुलेट करते हैं सेल साइकिल को। साइक्लिन डी और साथ ही साथ ये जो साइक्लिन डी होते हैं वो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस यानी सीडीकेस, इनके साथ बाइंड होकर ये सेल साइकिल को, सेल साइकिल के जो डिफरेंट डिफरेंट फेजेस होती हैं G1S, G2 और M, इन्हें रेगुलेट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप सभी को पता है सेल साइकिल के जो फेजेस होते हैं G1S, G2 एंड M। तो ये जो सेल साइकिल होती है इसमें डिफरेंट डिफरेंट चेक पॉइंट्स होते हैं। पहला जो चेक पॉइंट है वो G1 और S के बीच में होता है। दूसरा जो चेक पॉइंट है वो G2 और M के बीच होता है। और साथ ही साथ जो माइटोसिस है इसमें भी एक चेक पॉइंट होता है, ठीक है। तो ये जो होता है G1S के बीच में जो चेक पॉइंट होते हैं यहाँ पर साइक्लिन, ओके, साइक्लिन प्रोटीन, ये जो साइक्लिन डी प्रोटीन है वह, यह जो चेक पॉइंट हमने आपको बताए वहां पर ये काम करते हैं। ओके, और ये जो साइक्लिन डी प्रोटीन होते हैं वो सीडीकेज नाम के
सीडीकेज नाम के जो एंजाइम्स है, स्पेशली ये प्रोटीन काइनेजेस एंजाइम है। ओके, सो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस एंजाइम जो होते हैं, जब ये स्पेसिफिक साइक्लिन डी जब इस सीडीकेज के साथ बाइंड होते हैं, तब ये जो चेक पॉइंट्स है उसे क्रॉस कर कर G1 से S में जाया जा सकता है। और साथ ही साथ स्पेसिफिक जो साइक्लिन डी है, जब वो सीडीकेज के साथ बाइंड होते हैं, जो एम जिसे हम साइक्लिन एम भी कह सकते हैं, तब वो G2 से एम को क्रॉस कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो रेगुलेटरी प्रोटीन्स जीन होते हैं साइक्लिन डी, इनका म्यूटेशन अगर हो जाता है तो ये जो चेक पॉइंट्स है, ये चेक पॉइंट जो होते हैं, ये इनका इनिबिशन लॉस्ट हो जाता है, इनका रेगुलेशन स्टॉप हो जाता है, और कंटिन्यूअसली यहाँ पर सेल डिवीजन सेल साइकिल चलते रहती है। सो यह होते हैं ऑन्कोजीन्स, डिफरेंट डिफरेंट ऑन्कोजीन्स। प्रोटो ऑन्कोजीन, इनके जो नॉर्मल जीन है उनमें म्यूटेशन होता है इन तीनों में से किसी भी फैक्टर की वजह से, जिसकी वजह से उनके प्रोटो ऑन्कोजीन ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, दैट इज कैंसर। तो बच्चों, ये है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर, साथ ही साथ डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर। देखिए फॉर एग्जांपल, इन फिजिकल केमिकल या बायोलॉजिकल फैक्टर की वजह से ये जो नॉर्मल सेल है इसके जीन में म्यूटेशन हुआ है, और इस म्यूटेशन की वजह से अनकंट्रोल ग्रोथ होती है, जिससे जो अभी हमने आपको बताया चेक पॉइंट्स होते हैं सेल साइकिल के, उस पर कंट्रोल नहीं होता, इस वजह से सेल प्रोलिफरेशन मल्टीप्लिकेशन होता है। ओके, साथ ही साथ ये जो म्यूटेशन होता है वो डीएनए रिपेयरिंग जीन पर भी इफेक्ट करते हैं, सेल साइकिल कंट्रोल करने वाले जीन पर भी इफेक्ट करते हैं, और फिर कंटिन्यूअसली जो होता है, ओके, प्रोटो ऑन्कोजीन का ऑन्कोजीन में कन्वर्ट होने की वजह से ये जो सेल्स होते हैं वो मल्टीपल सेल्स में कन्वर्ट होते चले जाते हैं, और इसी को हम कैंसर कहते हैं। अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ द नॉर्मल सेल, द कन्वर्जन ऑफ नॉर्मल सेल इनटू अनकंट्रोल ग्रोइंग डिवाइडिंग सेल, इसी को हम कैंसर कहते हैं। ओके, तो बच्चों, इस तरह के ये कैंसर के डिफरेंट डिफरेंट साइन और सिम्टम्स हमने आपको बताए, डिफरेंट डिफरेंट सर कैरेक्टरिस्टिक। यस, सर ट्यूमर सो तो ये है कैंसर के बारे में। ओके, सो तो बच्चों, यहाँ आपने देखा कि किस तरह के कैंसर मीन्स डिफरेंट डिफरेंट कॉजेस रीजन, साथ ही साथ हाउ डज दिस कैंसर अराइजेस, ये सारी चीजें हमने देखी। ओके, तो बच्चों यहाँ पर जो है हमें स्टॉप करना होगा,